नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ में मैं जिग्ना ठक्कर आप सभी का आज के ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ। पहले तो हम चलेंगे स्पिरिचुअल रियलिटी के सफर पर। पार्ट 5 देखेंगे आज हम, आध्यात्मिक सच्चाई का पार्ट भाग 5। सो चलिए मैं आप सभी को ले चलती हूँ पार्ट 5 की तरफ और हम जुड़ते हैं स्पिरिचुअल रियलिटी पार्ट 5, जिसमें हमें एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बताया गया है। So it is about astral travel. Now let us know the other tool of the self, that is, astral body. Astral body is a tool of the self to perceive other frequency realities. Astral body is one more form of our consciousness, just like our physical body. In normal condition, our consciousness is spread throughout our physical body. When we receive sufficient amount of energy and when we feel to perceive other frequency realities, consciousness moves in the form of astral body. We perceive astral body experiences unconsciously in our sleep, which we call dreams. One can perceive astral body experiences consciously in meditation. Astral body travels beyond space and time. After conscious astral experiences, we start perceiving new dimensions. In meditation, after receiving abundant cosmic energy, the consciousness which is spread everywhere in the body starts moving towards a point. While consciousness is moving, we experience jerks in the physical body. We feel as if our body is floating. We don't feel the hands and legs. We feel lightness of the body like a feather. Movements may be experienced in different parts of the body, or sometimes one may experience as if the whole body is rotating. These are known as astral movements. By practicing more and more meditation, we get more cosmic energy. The consciousness takes the form like an astral body, starts rotating very fast, which causes heavy movements. After the movements, the astral body starts coming out of the physical body with a link called silver cord. Silver cord is nothing but a high vibrant consciousness which transfers the messages of the physical body to the astral body and vice versa. With this, we do astral travel.
Astral travel is a travel of our consciousness to known and unknown places and frequencies. By doing astral travel, we get highest knowledge and understanding of the self. In astral travel, our astral body can pass through all physical materials. All elements like earth, water, fire, wind, and ether. Astral body can go to all other frequencies without any limitations. After coming out of the body, the meditator sees his own physical body. By this, he gets a great understanding. He understands that he is not just the body and mind, but he stays in the body. This is a great understanding. Everyone should experience astral travel. By experiencing astral travel, our limitedness will vanish and we will understand that we are unlimited. By this experience, we understand that we are the consciousness. We understand that we are unlimited. We understand the new dimensions of life. तो हम इस तरह से एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में मैं आप सभी को एक स्टोरी बताना चाहूंगी। एक बार पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उनको थोड़ी देर बाद उनके एक फ्रेंड का फोन आया कि आप मतलब उस टाइम में ना मोबाइल्स थे और ना ही कुछ इतनी सारी सुविधाएं थी और उनके फ्रेंड उनसे बहुत ही दूर रहते थे, तो उनका एक बार उनको फोन आया कि आप ये कलर का कुर्ता पहन के ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला हाँ बात तो सही है, पर तुम इतना दूर हो, आपको कैसे पता चला? बोले मैं आया था वहां पे। तो उनको ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। फिर दूसरे दिन वापस से उनको ऐसे ही फोन आया उनके फ्रेंड का कि आपने ये कलर का कुर्ता पहना था और आप ये वाले न्यूज़पेपर में ये वाली न्यूज़ पढ़ रहे थे। तो पत्री सर ने बोला कि हाँ बात तो सही है। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है? तो पता चला कि उनका जो फ्रेंड है वो कोई बुक पढ़ रहा था और उसमें यही एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बताया गया था। तो वो एस्ट्रल ट्रैवल करके पत्री सर के पास आता था, मतलब वो बॉडी से बाहर आता था। फिर वो सोचता था मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो उसका पत्री सर उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे, तो सोचता था चलो मैं पत्री सर के पास ही चला जाता हूँ। वो पत्री जी के पास आ जाता था और फिर देख के वापस से चला जाता था। तो उन्होंने पत्री सर को ये बात बताई। फिर तब से पत्री सर को बहुत सी जिज्ञासा हो गई, बहुत सी क्यूरियोसिटी हो गई कि ये सब कैसे होता है। और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें रीड करना शुरू किया। उन्होंने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बुक्स पढ़ी है, स्पिरिचुअल बुक्स। और उन्होंने
एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें हमें 500 बुक्स का लिस्ट दिया है कि ये सारी बुक्स हमें जरूर पढ़नी चाहिए हमारे लाइफ टाइम में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे मेडिटेशन की ओर। आनापानसती मेडिटेशन करेंगे। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ रहना। मेडिटेशन पोस्चर ले लेंगे। मेडिटेशन पोस्चर लेने से पहले हम सभी एक सिप पानी पी लेंगे जरूर, ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी अच्छे से बैलेंस हो जाए। हम एक स्थिर सुखासन में बैठेंगे। स्थिर यानी जिसमें हम काफी लंबे समय तक बिना पोजीशन को चेंज किए हुए स्टेबली बैठ सके। सुखासन मतलब कंफर्टेबली बैठ सके। तो हम स्थिर सुखासन में बैठेंगे। फिंगर्स को क्लैस्प करके गोद में रखेंगे। पैरों को क्रॉस योर लेग्स पोजीशन में रखेंगे। अगर चश्मा पहना है तो चश्मा उतार देंगे और धीरे से आंखें बंद करेंगे। 3 लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, बस आती और जाती निर्मल, कोमल, सॉफ्ट, इजी सांसें। जब हम इस धरती पर आए तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को साथ लेकर आए थे दोस्तों। और जब यहाँ से हम जाएंगे तो सांसें ही होगी जो हमारा साथ छोड़ते ही हमें ये धरती छोड़नी होगी। तो हमारा इस धरती पर एकमात्र सच्चा दोस्त अगर कोई है तो वो है अपनी सांसें। जो चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमारे पास पैसा है नहीं है, हम स्वस्थ है नहीं है, चाहे हम कोई भी सिचुएशन में हो, सांसें हमारा साथ नहीं छोड़ती। पर क्या हम कभी सांसों को टाइम देते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपनी सांसों के साथ थोड़ी देर बैठे? कभी नहीं। तो चलिए आज बैठते हैं अपने इस सच्चे दोस्त, सच्चे गुरु के साथ, थोड़ा सा समय बिताते हैं उसके साथ। अपने सारे गुरुओं का आवाहन करेंगे। अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे। गणपति गजानन महाराज, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, साईं बाबा, जगन्नाथपुरी जी, सभी का आवाहन करेंगे। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तऋषि मंडल, सभी का आवाहन करेंगे।
आर्कएंजल्स का आवाहन करेंगे, एंजेलिक टीम का आवाहन करेंगे, स्पिरिट गाइड्स का आवाहन करेंगे, सेफ मास्टर्स, टोबियास मास्टर्स का आवाहन करेंगे। हम सभी अपने ऊपर, सर के ऊपर एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड का आवाहन करेंगे। हम सब जानते हैं कि पिरामिड में बैठ के ध्यान करने से ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। तो हम इमेजिन करेंगे कि हम सारे एक ग्रुप में, एक गोलाकार में बैठ के, एक सर्कल में बैठ के, एक दूसरे का हाथ थाम कर एक पिरामिड के नीचे ध्यान कर रहे हैं। इससे हमें 6 गुना एनर्जी ज्यादा मिलेगी, 3 गुना पिरामिड से और 3 गुना ग्रुप की एनर्जी से। तुरंत ही हम अपने आप को सरेंडर करके, समर्पित करके इस ग्रुप की एनर्जी के साथ जुड़ जाएंगे। महसूस करेंगे अपने क्राउन चक्रा से, अपने सहस्त्रार चक्रा से एक अविरत एनर्जी का भाव अपने ऊपर गिरता हुआ। पूरी तरह से भीग जाइए इस एनर्जी के बहाव के अंदर। महसूस कीजिए आपके आसपास की एनर्जी फील्ड को परिवर्तित होता हुआ। महसूस कीजिए आपके खुद के बॉडी में एनर्जी फील्ड का बदलाव। आप हर एक पल रिजुविनेट हो रहे हैं, री एनर्जाइज हो रहे हैं। आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां क्लीन होती जा रही है, हील होती जा रही है। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ होते जा रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थता आपकी ओर बढ़ती जा रही है। सर से लेके पांव तक पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। माथे की शिकन को हल्का कर दीजिए। शोल्डर्स को ड्रूप कर दीजिए। आपके कंधों के ऊपर आपने जो जिम्मेवारियां उठा रखी है, सारी जिम्मेदारियों को यूनिवर्स के पैरों में रख दीजिए। भगवान को समर्पित कर दीजिए कि आज से ये सारी जिम्मेवारियां आपकी, और ये सांसें मेरी। मैं हमेशा ही सांसों के साथ जुड़ा रहूंगा, जुड़ी रहूंगी। ध्यान मतलब क्या? सही मायने में भूतकाल के बारे में नहीं सोचना, ना भविष्य की चिंता, और अपने वर्तमान में बने रहना, उसे ही ध्यान कहते हैं दोस्तों। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, पूरा ध्यान लिखने में। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो पूरा ध्यान खाना बनाने में।
इसे ही तो सही मायने में ध्यान कहते हैं। प्रेजेंट में बने रहना, अपने वर्तमान के साथ पूरी तरह से जुड़े रहना। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, बस ये सितार का मधुर संगीत और सुंदर, कोमल, नेचुरल, इजी सांसें। खो जाइए इस संगीत के साथ, झूम जाइए अपनी हर एक सांसों के साथ। अपने माता पिता की पूर्णात्मा का आवाहन कीजिए, अपनी पूर्णात्मा का आवाहन कीजिए। पूरी तरह से अपने आप को अनकंडीशनल लव करना सीख जाइए दोस्तों। चाहे आप कैसे भी हो, अपने आप को असीम प्यार देना है। चाहे आप नाटे हो, मोटे हो, पतले हो, कैसे भी हो, अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए दोस्तों। अनकंडीशनल लव। बिना किसी कंडीशन का लव। चाहे आपने पास्ट में कोई भी गलती की हो, कोई भी मिस्टेक की हो, उसके लिए गिल्टी नहीं फील करना है। हर मनुष्य से गलती होती है। सीखो अपने आप से प्यार करना, अपने आप को माफ करना। बस दूसरी बार अवेयर रहना है कि हम वो गलती ना दोहराएं। अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। आपको प्यार ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, बस आप खुद को प्यार करना सीख जाइए। आपको हर जगह से प्यार मिलना शुरू हो जाएगा।
सेल्फ लव करने के लिए मिरर वर्क एक बहुत ही अच्छा तरीका है। रोज सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े हो जाइए। अपनी आंखों में देखते हुए अपने आप की प्रशंसा कीजिए, अपने आप की तारीफ कीजिए। मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरी आंखें कितनी सुंदर है, मेरी नाक कितनी नुकीली और प्यारी है। बस जितना हो सके उतनी देर तक खुद की तारीफ कीजिए अपनी आंखों में देखते हुए आईने में। कई लोग इतना ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों में आंखें मिलाकर देख तक नहीं पाते आईने में, क्योंकि उनकी सेल्फ लव इमेज बहुत ही छोटी होती है, बिल्कुल भी अपने आप को प्यार नहीं करते। यह सुधारने के लिए रोज अपने आप को आईने में देखकर अपनी तारीफ करनी है, आंखों में देखकर। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वर्दी, आई एम कॉन्फिडेंट। हर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने लिए देना है। आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट। हो सके उतने पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को दीजिए अपनी आंखों में देखते हुए। आखिरी 4 मिनट दोस्तों। अगर अब तक भी आपका ध्यान ना लगा हो तो इस 4 मिनट में पूरी तरह से आप भरपूर ऊर्जा को अपनी तरफ खींच सकते हैं। पूरी तरह से तरबतर हो जाइए इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, यूनिवर्सल एनर्जी में, कॉस्मिक एनर्जी में। एक भी सांस ऐसी ना हो जो आपके खुद के अवेयरनेस के बाहर जाए। आपको हर एक सांस को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। सांसें ही केवल एक ब्रिज है जो हमें हमारे अंदर के परमात्मा के साथ जोड़ती है। सांसें है सब कुछ है जीवन में, सांस नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सांस ही है जो हमें शिव बनाती है। बिना सांस के हम शव बन जाते हैं। अपनी सांसों को अपना परम मित्र बना लीजिए दोस्तों।
धीरे से अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। धन्यवाद करें अपने आप का, धन्यवाद करें अपनी सांसों का, धन्यवाद करें अपनी पूर्णात्मा का, धन्यवाद करें अपने माता पिता की पूर्णात्मा का, धन्यवाद करें पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि मुनि का, एस्ट्रल एसेंडेड मास्टर्स का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, सेफ मास्टर्स का, टोबियास मास्टर्स का, हनुमान जी का, गणपति जी का, गौतम बुद्धा का, कृष्णा का, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का, गुरु नानक जी का, शिवा का, अपनी गुरु मंडली का। धीरे से अपने दोनों हाथों को अलग करते हुए अपनी आंखों पे रखिए। आंखों को हाथों के अंदर ही खोलते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हग देंगे। सारी एनर्जीज को क्लैप करते हुए आसपास के वातावरण में फैलने देंगे। अपने पास में रखे हुए जल के पात्र को हाथ में ले लेंगे और इस पानी को हम चार्ज करेंगे। प्यार से और धन्यवाद भाव से इस जल को देखते हुए हम इसमें यह इंटेंट डालेंगे कि ये जल मेरे और मेरे समस्त परिवार के लिए जीवन में विश्व के सारे लौकिक और अलौकिक सुखों को आकर्षित करता है। आपका कुछ पर्सनल इंटेंशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। एक सिप पानी पीकर बाकी का घर के जल की घड़े में डालने के लिए रख देंगे फैमिली मेंबर्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। कल मिलेंगे 2:30 को।